सेशन में हम जानेंगे कि कैसे नैरेटिव्स बनते हैं और भारत के असली इतिहास और आत्माभिमान को वापस लाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। Presenting the speakers, Pradeep Bhandari ji. Shri Pradeep ji is a prominent Indian journalist, psychologist, and media personality known for his unique reporting style and sharp political insights. He is the founder and editor-in-chief of Jan Ki Baat, a digital platform renowned for its accurate election predictions, having covered over 39 Indian elections. Pradeep ji gained national attention in 2020 for his investigative reporting on the Sushant Singh Rajput case and continues to be a significant voice in narrative building within the Indian media. He is currently serving as the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Can we have Shri Pradeep Bhandari ji? He's on the Professor Vineet Nayak ji. Let's welcome Vineet ji. He is a distinguished professor of finance based in Mumbai with a background as a company secretary and an MCom graduate. A devout Bharat Bhakt, he is a keen student of Acharya Chanakya's Arth and Niti Shastras, offering insightful analysis on Bharat's political, social and economic policies in both domestic and global contexts. Known by the pseudonym Bhiku Makre on social media, Professor Nayak blends his teaching expertise, student leadership background, and theatrical flair to engage and inspire youth with his distinctive perspective on matters concerning Bharat. Our next speaker, Shri N.K. Mishra ji. Mishra ji, a 1988 batch IPS officer of the Sikkim cadre, served as the Director General of Sikkim Police and held the prestigious position of Special Director in the Intelligence Bureau. With extensive experience in intelligence and policing, his insights into internal security dynamics and strategic operations make him a crucial voice in discussions on safeguarding national interests. Our next speaker, Shri S.C. Mishra ji. Satish Chandra Mishra ji is a member of the first batch of Bharatiya Vidya Bhavan, Lucknow. Active in journalism since 1996, he worked as bureau chief and assistant editor, executive editor in Lucknow, Chandigarh, Jalandhar and Jammu in half a dozen newspapers, including Swatantra Bharat, Lucknow and Navbharat Gopal, Navbharat Gwalior, and the most popular magazine of the 90s, Vichar, Vimansa, etc. These days, he is busy with freelance writing, TV shows, and prominent YouTube channels. Next, we welcome Shri Vishnu Shankar Jain ji. Now that's the post-lunch energy that we need to see. Vishnu ji is a prominent advocate known for his dedication to upholding Hindu Dharma and Sanatani values through the legal framework. Following in the footsteps of his father, Shri Hari Shankar Jain ji, Vishnu ji began his legal career in 2010 and played a significant role in the landmark Shri Ram Janmabhoomi case. Assisting with the challenge to the 2010 Allahabad High Court verdict, I'd rather say Prayag verdict. In 2016, he became an advocate on record at the Supreme Court and continued to actively represent the case. His work exemplifies the role of law in reclaiming and preserving civilizational values. And lastly, the chair for the session, Shri Praveen Chaturvedi ji. Praveen ji is the founder and CEO of Raksham, the world's first Hindu OTT platform dedicated to exploring and celebrating traditional Indian culture through storytelling and cinematic expression.
A former mariner, filmmaker, and poet, Praveenji is deeply rooted in Vedic traditions and the Guru Shishya Parampara of India. With Prachyam, he aims to bring India's timeless heritage to the forefront, blending creative narratives with the profound message of its cultural and spiritual legacy. Let's start the session. Jai Shri Ram. Well, it was just a surprise to me that I have to chair this session. And it's a great pleasure and honor to chair this session with such eminent dharmic yodhas, as I call them, who have a great contribution for Bharat, for our Hindu Dharma, for our Vedic traditions. So thank you so much. The main thing that we are going to discuss around is, what is the role of media? And, this is the age, of media. This is the age of communication. And this war is primarily the war of narratives, which has to be fought very bravely, very intelligently, and with all the astra and shastra that we have at our disposal of various means of media. And that includes films. The Bollywood, as you know, how it distorted the Indian culture. बल्कि हम हिंदी में बात करना चाहेंगे अगर आप लोग हिंदी समझते हो. हाँ, तो आपने देखा कि फिल्म का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के नैरेटिव को सेट करने में, किसी भी संस्कृति को आगे बढ़ाने में या उसको विनष्ट करने में. ये बहुत दुख की बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, समझे नहीं बेटे, ज्यादातर जो इंडस्ट्री के लोग थे, जो फिल्म मेकर्स थे, पिछले कुछ दशकों में उन्होंने भारत की संस्कृति को विनष्ट करने का काम किया अपने प्रोपेगेंडा को चला के, जो कि उनका प्रोपेगेंडा अलाइन था एंटी भारत फोर्सेस से, बाहर के अंडरवर्ल्ड से. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिल्म्स का. मीडिया के बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से स्क्रीन्स हैं जिसके कुछ योद्धा हमारे साथ बैठे हैं. मीडिया में आजकल सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल, बहुत ही एक सशक्त एक हथियार रूप में आया है. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस अस्त्र को हम कैसे इसका सदुपयोग करें अपने कॉजेस के. तो हमें इस बात के प्रति सचेत होना बहुत आवश्यक है और हम सबको ये युद्ध संगठित होकर लड़ना है. इतने अच्छा अपने अपने तरीके से लोग युद्ध लड़ रहे हैं. तो मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. मीडिया हर तरीके का, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो. प्रदीप भंडारी जी हैं हमारे साथ में, हमारे साथ भीकू मात्रे जी के हैंडल से चलने वाले नाइक साहब हैं, इतने लोग हैं. तो ये लोग जो हैं बहुत ही अलाइंड, भारत माता से अलाइंड लोग हैं, जो भारत के पुनरुत्थान के सर्वस्व सब कुछ समर्पित करके और पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं. एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. So I will just start this session with a 2-minute film made by Prachyam. Just 2 minutes film. Why I want to show this film? See the power of cinema. 1,000 years of history in 2 minutes. And the role of media, what it can do, whether it can nail or whether it can break. क्या वो संस्कृति का रक्षक हो सकता है, ये संस्कृति को विनष्ट कर सकता है. I chose a path. मैंने सोचा कि मुझे जो मैंने सीखा था विदेश में, हॉलीवुड में काम करके, उसको भारत माता की सेवा में लगाएं. इसलिए मैंने भारत में आके विश्व का पहला हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया, प्राच्यम. ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये पूरे विश्व में, और मैं बहुत अनअपोलोजेटिक हूँ. हमारा जो मोटो है भी अनअपोलोजेटिक है. हम अनअपोलोजेटिकली कहते हैं कि हम हिंदू हैं और ये हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म है. हमें और किसी की आवश्यकता नहीं, हमें सेकुलर नहीं बनना है. जो हिंदू है, जितने हिंदू हैं पूरे विश्व में, वो अवश्य प्राच्यम के ओटीटी को सब्सक्राइब करें. यहाँ कितने लोग प्राच्यम को जानते हैं? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं. बहुत बढ़िया. तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे नैरेटिव को, हमारे 1000 साल के नैरेटिव को हमारे मीडिया ने कैसे डिस्टॉर्ट किया. आकाश, जरा पहला वीडियो चलाइएगा. ये लाइव स्ट्रीम करिए, पहले लाइव स्ट्रीम कर दिए इधर.
इसलिए ये आज का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे हम लोग जितने धार्मिक योद्धा बैठे हैं, विष्णु जी हैं जिन्होंने किस आप देखिए वीरता से, समर्पण से, वीर रस में आके आपके पूज्य पिताजी, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं उनको बहुत बड़े से जानता हूँ कैसे उन्होंने धर्मजीत के लड़ा है, लड़ रहे हैं। विष्णु भी है संग, आपको फिर अपना नाम बदलना पड़ेगा। विष्णु में साथ ही लेना। ये लाइट जरा कम करती है, लाइट्स रेड रहती है। इस वीडियो का नाम है व्हाट वी बिकेम। कितनी महान सभ्यता हमारी भारत की, कितनी महान संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी क्या थी और क्या उसको बना दिया गया। इसको प्लीज प्ले द वीडियो नंबर 1। उसके बाद इस वीडियो के बाद हम लोग इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और हम लोग सबने क्या 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 उनकी दृष्टि, हम दो तरीके की बात करेंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम आज यहाँ से जाएंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन हम सबको का सुझाव देंगे और जितने लोग हैं दे शुड टेक अवे विद देम सॉल्यूशन एंड ए रिजॉल्व कि ये इस धार्मिक युद्ध में, ये देवासुर संग्राम है। इस धार्मिक युद्ध में आप सब लोग भी इन योद्धाओं का साथ देंगे जैसे भी दे सकते। रेडी? आप प्ले करिए पहला वाला व्हाट वी बिकेम। ये ऑन करिए, ऑन नहीं है। और इसको हो रहे हैं टाइम लगेगा, को गर्म होगा तब लगेगा। कब तक आप चलिए कोई बात नहीं, आप तक ये वॉर्म कर लेंगे प्रोजेक्ट भाई। आगे लाइट्स बंद कर दी, लाइट्स बंद कर दी 2 मिनट के लिए। हाँ कंप्लीट कर देगा ये। और बंद कर दी पीछे की भी। हाँ प्ले करिए प्लीज, साउंड नहीं, साउंड। भाई आपको बैठना होगा, लोग देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे सौ आपने जैसे देखा ना कि कैसे नैरेटिव्स को जो है मीडिया डिस्टॉर्ट कर सकता है। जोधा अकबर कसु एग्जाम्पल है ना, कैसे ग्लोरीफाई किया गया अकबर को। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र रत्नू बैठे हैं जिन्होंने महाराणा को बता ओपनिंग ही है चित्तौड़गढ़ में, कैसे अकबर ने 40,000 हिंदुओं को मरवाया था खड़े होके। लेकिन दिखाया क्या क्या फिल्म में है, मीडिया है, देखिए कैसे पहले कैसे कंप्लीट उनका कंट्रोल था और कैसे नैरेटिव्स को डिस्टॉर्ट करते थे, फेक नैरेटिव्स पैटर्न करते थे। अब हम लोग के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि फेक नैरेटिव्स को काउंटर करें और भारत के सच्चे नैरेटिव को पूरे विश्व में स्थापित करें। ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम वापस आने राय जी आपके पास आ चुके हैं। तो जो आपने पहले सवाल पूछा कि सोशल मीडिया की क्या जरूरत है, तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया 1947 से होता तो शायद जिन्हें महात्मा बनाया गया और जिन्हें द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर बताया गया, उनकी हिस्ट्री तभी से सबके सामने आ जाती। भारत अकेला देश ऐसा नहीं है जो नैरेटिव्स वॉर लड़ रहा है। सोशल मीडिया की जरूरत, जब से सोशल मीडिया एस्टैब्लिश हुआ, आगे प्रोग्रेस होने लगा, तब से आप देखिए इन लिबरल्स की जो उनके छुपे हुए राज थे, उनके जो कुछ के मकसद थे, उनके जो मोटिव्स थे, वो धीरे धीरे सबके सामने आने लगे। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवादी जो शक्तियां थी 2014 के पहले सोशल मीडिया पे हम बहुत वीक थे। सोशल मीडिया वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द लेफ्टिस्ट। पूरा एजेंडा उनके हिसाब से चलता था। 2012 से मोदी जी ने सोशल मीडिया में अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और तब से राष्ट्रवादियों का एग्जिस्टेंस सोशल मीडिया में बढ़ गया। और अब वक्त ये आ चुका है कि हम उन लेफ्टिस्ट के सामने सीना ठोक के खड़े रहते हैं और उनके हर पर्टिकुलर मकसद को हम एक्सपोज करते हैं। करना जरूरी है, बिकॉज नॉट ओनली सोशल मीडिया, ओवरऑल अगर आप मीडिया की बात करेंगे तो नैरेटिव्स वॉर एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से यहाँ पे तख्त बदल चुके हैं। आप जरा सोचिए, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, इतना बिल्कुल नहीं था, तब क्या इराक में सद्दाम हुसैन की सरदार नहीं गिराई गई थी?
क्या लीबिया में गद्दाफी की सरकार नहीं गिराई गई थी? लेकिन अमेरिका कैसे बोल सकती है कि भाई हमें उनका ऑयल चाहिए? अमेरिका कैसे बोल सकती है कि इराक का जो प्लान है, सद्दाम हुसैन वाज प्लानिंग एक्चुअली पेट्रो डॉलर, मतलब एक्चुअली का पेट्रो करेंसी अदर देन यूएस डॉलर। और आप सोच सकते हैं कि अगर सपोज रिजर्व करेंसी का स्टेटस अगर यूएस डॉलर का चला गया तो यूएस की क्या हालत होगी? अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके उन्होंने अपने डेट्स अभी तक मैनेज किए, लेकिन अगर सपोज उनका ग्लोबल रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है वो अगर निकल जाए तो फिर वो इस हालत पे पहुंच सकते हैं कि जिस हालत में आज श्रीलंका है या जिम्बाब्वे है या एक जमाने में पहले ग्रीस था। तो फिर डायरेक्टली अटैक कैसे कर सकते हैं? क्या नैरेटिव स्प्रेड किया गया? सद्दाम हुसैन इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड, सद्दाम हुसैन इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। क्यों? वो एटम बॉम्ब डेवलप कर रहा है, वो केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। यहां तक कि जब बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं उसके ऊपर जब शुरुआत हुई थी तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सद्दाम हुसैन ऑलरेडी कर चुका है। ये बहाना बना के इराक पे अटैक किया गया, सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई गई। क्या मिला? कितने एटॉमिक वेपन्स में, कितने केमिकल वेपन्स में? कुछ नहीं। द सेम थिंग विद गद्दाफी। अगर आपको ऑयल के ऊपर कंट्रोल चाहिए आप सीधा बोलिए, लेकिन नहीं, अगर सीधा बोलेंगे तो आपका नैरेटिव ऐसे सेट होगा कि आप जो कर रहे हैं, जो गलत काम आप करना चाहते हैं वो हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं। वहां पे भी यही बताया गया, गद्दाफी अपने लोगों पे बहुत अत्याचार कर रहा है, वहां पे जेनोसाइड हो रहे। अगर सपोज 10% हो रहे तो उसको बताया गया 1000%। बहाना लेके गद्दाफी को गिराया गया। यूक्रेन, कल आपने देखा रहेगा वो जो बहुत पॉपुलर चल रहे थे, बहुत ट्रेंडिंग चल रहे थे कि किस तरह से एक यूक्रेनियन पप्पू, अभी एक कॉमेडियन के हाथ में अगर आप देश ढोले तो देश की तो सर्कस ही बनी। तो ये भाई साहब को आप जरा सोचिए, इनको पावर में लाया कैसे गया था? वहां पे भी तो एक नैरेटिव वही चला था। तो किस तरीके से अगर हम इन चीजों को दखलंदाज करेंगे, अगर हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो नतीजा ये होगा कि इसकी वजह से हमारी सरकारी गिरने की नौबत आ सकती है। और मैं तो ये कहूं कि 2024 was the biggest example of this, biggest example। क्या नैरेटिव्स पैदा किए? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, लेकिन हम वो वीडियो नहीं चला पाए उस ताकत से कि जब 2014 में मोदी जी ने पहली बार जब पार्लियामेंट में कदम रखा था तो कदम नहीं रखा था, पहले माथा टेका था। तो जो इंसान उस पार्लियामेंट की पहली सीढ़ी पे माथा टेक के पहली बार अंदर एंटर करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगा। कितना झूठ फैलाया गया। नॉट ओनली दैट, अदर देन दैट, ये खटाखट स्कीम वगैरह वो तो चलो पॉलिटिक्स की बातें हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव चलाए गए, नौबत ये आ गई थी कि हम बाल बाल बचे, हम बाल बाल बचे। कहा हम 300, 350, 400 की बातें कर रहे थे, 240 देख के वो सदमा जो था वो सिर्फ मोदी जी को नहीं था, वो यहाँ पे बैठे हुए हर राष्ट्रवादी को था। सबके दिमाग में ये चिंता, अब मोदी जी आ तो गए लेकिन अब आगे काम कैसे होगा। लेकिन कई देशी बस इन पे मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने तो फेक नैरेटिव चलाए, लेकिन हम भी चूक गए हैं, हम काउंटर नैरेटिव तुरंत लेके आ नहीं पाए। एग्जैक्टली बहुत ही आवश्यक था। इसमें लिए क्या देना चाहिए, मैं इसके लिए प्रदीप के पास आऊंगा। प्रदीप भी आप बताइए, क्योंकि आप तो बहुत क्लोजली आप इलेक्शंस को कवर करते रहे हैं, तो अभी ये मीडिया पे चर्चा हो रही है, तो अभी आप जरा मैं चाहूंगा कि एक मीडिया पर्सनालिटी के रूप में आए, न कि नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में भी बात करें। मीडिया के होते हुए आप भी बताइए कि जो नैरेटिव जो अभी नायक जी ने बताया, बहुत से नैरेटिव चले। अमित शाह जी का एक वीडियो चला, वो भी नैरेटिव का पार्ट था। और जैसा अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नैरेटिव चलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, और बहुत तेजी से चला नैरेटिव। इसका काउंटर करने में क्या हम चूक गए? अगर चूक गए तो क्यों चूके, और क्या करना चाहिए कि आगे से हम तैयार हैं काउंटर्स लेके आने के लिए? पहले तो मैं पूरी टीम वीगो माथुरे, गायत्री जी और सभी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी एक ही पर्सनालिटी है, पर शुरू करने के पहले क्योंकि राष्ट्रवादियों का संगम मैं कहता हूँ जय श्री राम। ऐसा लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं है, सब खाना खा के नींद आ गई। एक बार वापस से बोलिए जय श्री राम। ये फर्क है सोशल मीडिया और नैरेटिव का। या आप 2014 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं सोच सकते थे कि स्टेज से कोई जय श्री राम बोलेगा और इतने सारे लोग साथ में बेखौफ होकर इसको बोलेंगे।
तो चेंज तो हुआ है। देखिए, मेरे हिसाब से ये अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूस वॉर है ऑफ परसेप्शन, जिसमें आप कुछ बैटल्स जीतते हैं, कुछ बैटल्स ऑपोजिशन जीत सकता है, पर अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि एंड रिजल्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से 2024 की जो विक्ट्री थी, जब ग्लोबली एंटी इनकम्बेंसी का दौर था, और आप सब डेटा के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सब इतना ज्यादा एनालिसिस करते हैं, सब इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ पे, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है आज की तारीख में, बेयरिंग अपार्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो तीसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म को रिपीट कर रहा है। तो मैं इस बात से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि हम इस वक्त वीकर नैरेटिव में हैं। मेरे हिसाब से हम स्ट्रॉन्गर नैरेटिव में हैं जो पहले के उसमें थे। हमारा दृष्टिकोण जो है, वीक नैरेटिव नहीं है, हम ये कह रहे थे, हमारा ये कहना है बिकॉज वी हैव लर्न लेसन्स ऑफ द आई पास्ट एम कमिंग टू दैट, कि हम लोग काउंटर नैरेटिव्स के मामले में कैसे और चुस्त दुरुस्त और प्रॉम्प्ट हो सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट, क्योंकि बीगू जी यहाँ पे कह रहे थे सब लोग की एक्सपेक्टेशन एक थी, यही जब भी आप कोई भी क्रिकेट मैच खेलेंगे या कोई भी चीज करेंगे, हर टीम जो है वो हमेशा हाई टारगेट ही रखेगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि जब आप जीतें तो आप मॉरली जो है सोचें कि आप जो है हारे। जो 99 सीट्स लेके आए वैसा सोच रहे थे कि 300 सीट लेके आए थे, तो हमारे सपोर्टर्स को पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंट उस तरीके से सोचना कि जनता ने आपको, हम सबको कहा कि भाई हरियाणा जीतो, दिल्ली जीतो, महाराष्ट्र जीतो, आप पावर में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मेंटल थिंग। नाउ आई विल कम टू द सेकंड पॉइंट। मेरे हिसाब से हमें काउंटर नैरेटिव वर्ड के बजाय ऑल्टरनेट नैरेटिव वर्ड का शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जहां काउंटर नैरेटिव बोलते हैं आप रिएक्टिव हो जाते हैं, जहां पे ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात करते हैं आप अपना नैरेटिव सेट करते हैं और अपने नैरेटिव को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो मेरा हमेशा सेम मानना रहा है, काउंटर नैरेटिव इज ऑलवेज अ रिएक्टिव अप्रोच। जैसे दिल्ली के अंदर इस वक्त मैं आपको, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर काफी माइन्यूटली नैरेटिव के साथ कार्य कर रहा था, ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑल्टरनेटिव नैरेटिव अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल सेट किया जाए, एंड इट वर्क बिकॉज ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो हमें हमेशा रिएक्टिव काउंटर नैरेटिव की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि फेक न्यूज, काउंटर फेक न्यूज, ये सब दौर आगे चलेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि आप हर टाइटल को जीतेंगे। आपको ये प्रैक्टिकल रियलिटी को समझना होगा कि कुछ चीजों के अंदर आपका ओपोनेंट भी एक बैटल के अंदर आगे हो सकता है। अब वो आपके सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और आपसी राष्ट्रभक्तों के बीच में कितना समन्वय होता है कि अगर वो एक बैटल में एक स्टेप पीछे भी हो जाए तो बड़ी दूसरी छलांग लगा सके। तो इट हैज टू बी अप्रोच फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर सोशल मीडिया नहीं होती, मैं आप सभी से पूछता हूँ, किसने प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान लिया? आप देखिए मेजोरिटी यहाँ पे 70-80% ही लोग हैं। और आज सब लोगों को देश के अंदर ये पता है कि जो आपने यहाँ पे फोटो दिखाई कि भाई सेक्युलरिस्ट हैव बिकम द इंक्लूसिव। आज प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी जी गए थे, 2 घंटे दूर प्रयागराज थे, पर प्रयागराज में स्नान लेने नहीं गए। तो लोगों के सामने सब कुछ स्पष्ट है। मेरा मानना ये होता है, इस देश की जनता, जितना मैं ट्रैवल किया हूं, हम सबसे ज्यादा समझदार है, वो हमेशा सही नैरेटिव को ही सब आगे ले जाती है। पर हमारी साइड पे, मैं 10 सेकंड अपनी बात को खत्म करूंगा, एक चीज जो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है कि हमें वी शुड बी मोर फैक्चुअल, लेस इमोशनल इन आवर प्लेइंग, बिकॉज इमोशन कैन ओनली टेक यू दैट फार, बट व्हेन यू हैव प्राइमरी फैक्ट्स एंड नॉलेज, जैसे विष्णु शंकर जैन के पास में प्राइमरी फैक्ट्स हैं, तो भले इनको जितने भी रेडिकल्स कितनी भी बात बोले, जब ये हमारे साथ टीवी में बैठते हैं, कोई भी पॉडकास्ट में बैठते हैं, जब ये तथ्य रखते हैं किसी केस का, द अदर साइड हैज नो आंसर टू इट। सो आई बिलीव वी शुड बी मोर एजुकेट, वी शुड इंश्योर कि जितने हमारे लोग हैं उनको कितना ज्यादा हम कस्टम प्राइमरी फैक्ट्स के साथ में कर सकें, वो ज्यादा रहेगा, तो हम हमेशा नैरेटिव को जीतेंगे। थैंक यू लतीफ, थैंक यू। सतीश विशाल जी के पास आना चाहूंगा। सतीश जी, इस नैरेटिव वॉर में, इस मीडिया के युग में क्या रोल है आपके हिसाब से प्रिंट मीडिया, जिसमें आपके विचार? देखिए, वजह होगा ऐसे ही होता है, और मतलब मुझे पकड़ नहीं आया क्या हो मेरे बच्चों को कभी भी होता है। आज मैं उनको मार खेल के बचे हो गए, मैं वास्तव में भागते मार क्या। लेकिन अभी जैसे बनारी जी का आवाज सुनी गई, बस गीगो बात भी थी, इनको ने कहा भंडारी जी ने कि हम गीत गई, हम बहुत बीकर बिल्कुल लेटे हुए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा है 2024 का लोकसभा चुनाव। पूरी भाजपा
पूरा देश पूरे भाजपा समर्थक हम लोग मैं भी इसको शामिल हूँ। सब लोग 400 सीटों की बात कर रहे थे और 400 सीटों की उम्मीद की जैसा नहीं तो हवा बातें कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आया 240। क्यों? कौन ये बता रहे साहब? क्योंकि हम नैरेटिव की लड़ाई बहुत बुरी तरीके से हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे। और जब तक हमारा हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट नहीं आ गया तब तक वो नैरेटिव का सरकार के 99 सीटें आगे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया। कोई जब वो हरियाणा को बहुत बुरी तरह एक रोज तबाह कम हुआ, उसका कारण तो वो अभी वो भंडारी की बात करूंगा कि जैसे घृष्णु जी बात हो रही कि वो फैक्ट है। जब आपका फैक्ट हो तो आपको कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आपको फैक्ट नहीं, आप वैसे ही बहस कर रहे हैं तो आप निश्चित हारेंगे। वो तय है। मैं दो की उदाहरण देता हूँ कि जो प्राचीन भारत की आप बात करिए, हमारे यहाँ 15-16 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो पूरी दुनिया में विख्यात थी। नालंदा सिराज मिसाइल में हम लोग जानते हैं, वल्लभी जी कैप्टन था, उदयपुर था, सही कहता 15-16 नाम है। लेकिन उसके बाद जब मुगल आए तो 800 साल का हमका मानिए आप, 800 साल का हमका कालखंड है। किसी से पूछे भी एक को कोई पढ़ने लिखने का स्थान यह बनाया जो बहुत बड़ा नौकरियों का बड़ा पैरोकार हो, उससे पूछो कि 800 साल में तुम्हारा 800 साल यहाँ शासन रहा है, तुमने वो जो 15-16 थी उनको जला दिया, उजाड़ दिया, और 800 साल में तुम एक ही नहीं बना पाए। तो यानी तुम बेसिकली तुम उधर में अनपढ़ थे, गवार थे, जाहिर थे, और जिसको हमारे मुगल कल्चर कह के पढ़ाया जाता रहा यूनिवर्सिटीज में, उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर है। दूसरे हम आप लोग कभी नरेंद्र मोदी को सब लोग सुनते ही होंगे। 2014-15 में हमने जनधन योजना शुरू की थी, और मैं कहता 2014 में वो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। ये 2014-15 की योजना है। लेकिन आज भी जो नरेंद्र मोदी देश द्रोही बोलते हैं वो जनधन योजना का जिक्र करते हैं, वो रसोई गैस वाली योजना का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? 10 सालों के भूल जाना है, छोड़ देना चाहिए। वजह क्या है कि आप आदमी की जिंदगी से जुड़ी चीज है, आप उसके बारे में बात करिए। और सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसा ब्रांड एम्बेसडर आपको लिखा है, और दूसरा इतनी बड़ी पूंजी उन्होंने दे रखी है कि इसके सामने कहीं टिकेगा नहीं है। और मैं आपकी एक अनुभव बताऊं, उसके बाद आप क्लियर हो जाएगी बात कि जनधन योजना तो सब जानकर 50 करोड़ खाते खुल गया, तो 50 करोड़ खाते नहीं खुले, उसकी वजह से 20 लाख करोड़ रुपए हम गरीबों के पास पहुंचे तो लूट लिए जाते थे। तो जब वो जनधन योजना की बात करते हैं तो हमारे आपके लिए नहीं करते, वो जो 50 करोड़ लोग हैं उनको संबोधित करते हैं, जिनको 30 लाख करोड़ रुपए मिले तो वो सुने जाते हैं। 50% लोगों के पास गैस नहीं थी, जो 50% लोग इनको गैस मिली, और उसको लैंसेट की रिपोर्ट है कि 1 लाख महिलाएं हर साल मर जाती थी, क्योंकि उनके बाद ईंधन इस्तेमाल करके लकड़ी कंडा कोयला, उससे जो प्रदूषण होता था उसकी वजह से 1 लाख महिलाएं हर साल मौत के घाट उतर जाती। तो नरेंद्र मोदी जानते कि ये जो नेगेटिव है कब महत्व है। तो 10 साल बाद ही वो रसोई गैस और जनधन योजना बताते हैं, वो जरूरी है। और हम हारते कहाँ में कि आप एक नेगेटिव चल रहा है, आज भी चल रहा है, 2014 शुरू हुआ और आज भी को देख रहे हो कि इंडस्ट्री यहाँ मर गई, अर्थव्यवस्था यहाँ खत्म हो गई, और देश बिल्कुल तबाही की ओर जा रहा है। किसी भी सभ्य देश में आज नहीं, अगर आप वर्तमान युग की बात करिए तो आपकी जो प्रगति है, जो औद्योगिकरण है, उसका जो सबसे बड़ा मानदंड है वो बिजली है। अगर बिजली ना होती तो सब काम खत्म हुआ था। और आपको काजिब होगा, मैं पूछूंगा कि आप लोगों से कितने लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 2014 में कितना था? मेरे ख्याल से 1 गया केवल 136 गीगावाट बिजली जब तो चरम पे पहुंची थी। हाईएस्ट पीक आवर था 136 गीगावाट बिजली हिंदुस्तान में कंज्यूम हुई थी 2013-14 में। और अभी जो 2024-25 है, इसका मालूम है आपको कि कहाँ पहुंचा? 250 गीगावाट, यानी करीब आप समझिए 80% ज्यादा। तो वो जो वो नेरेटिव चलाते हैं, सब इंडस्ट्री चौकट हो गई, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, तो ये जो बिजली है कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये रवीश कुमार इस्तेमाल कर रहा है, उन वाजपेयी इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? यही लोग इसको अजीत अंजू कर रहा है। लेकिन
justice. तो इनसे कोई छूटता नहीं। और इसी विषय की जरूरी आप एक चीज बताता हूँ कि आम आदमी की चीजें हैं वो बिजली, पानी, सड़क। तो सड़क के बारे में तो जानते हैं, कभी नामालय मंत्री है उनके व्यक्ति वो बड़े मुकर है, तो सड़क के बारे में गाली सड़क बहुत बनी देश से। लेकिन बिजली पानी में हमने क्या कमाल किया है नरेंद्र मोदी में, ये कोई नहीं है। आप ग्रामीण भारत की बात करिए, 19.5 करोड़ घर हैं ग्रामीण भारत के। और आपको मालूम है 2014 के माह कितने घरों में नल से जल जाता था। नरेंद्र मोदी आज भी उस योजना का जिक्र करते हैं और रेगुलर करते हैं। 19.5 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ घर ऐसे थे जहां पर नल से जल जाता था, 16 करोड़ घरों को नहीं जाता था। पर 2019 में शुरू किया और आज की तारीख में 2025 में हम चल रहे हैं, तो ये संख्या 16 करोड़ में पहुंच चुकी है। यानी आप इसको बहुत ऐसे देख लो, और वो जो वैरायटी होती है ना, अभी आपके कारण बताओ। अब मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा विशाल जी। अभी मैं जो पहले जो अपने दृष्टिकोण हैं, जो हमारे और भी वक्ता हैं यहाँ पे हमारे साथ जो स्टेज पे हैं, उनका जानना चाहूँगा। नैरेटिव जो है, एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो इस देश में बदला है, वो है जिसको लीगली बदला इस देश में, वो है हमारे साथ, वो है विष्णु शंकर जैन जी। क्या नैरेटिव था हमारा, है ना? आपके पिताजी जो है उन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट लिया राम मंदिर आंदोलन में, उस लीगल बैटल में। उस समय विष्णु जो है उन्होंने काशी विश्वनाथ, आप सबको मालूम है काशी विश्वनाथ को लेके जहाँ पे किस तरीके की जो है भ्रांतियां फैलाई गई थी, वहां पे पूजा रोक दी गई थी। उसके लिए अभी भी ये लड़ रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेके। आप जो है ये बताइए जरा, ये जो शिफ्ट ऑफ नैरेटिव हुआ वो पहले क्या था, कैसे लीगली आपने नए नैरेटिव्स को एस्टैब्लिश किया और कैसे इसको लेके आप विजय की तरफ बढ़ने से प्रकाश होगी? सभी को नमस्कार। और सबसे पहले गायत्री जी को और ऑर्डिनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा ये आयोजित किया। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अभी प्रदीप भाई ने यहाँ पे बात कही कि कंटेंट, अगर आपका कंटेंट और अगर आपके फैक्ट्स स्ट्रांग हैं तो कभी ना कभी वो बात तो सुनी जाएगी। पर मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ जहां पर मुझे लगता है कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम लोगों ने इस नैरेटिव के खिलाफ लड़ा है। सबसे पहला उदाहरण है, 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक है जगन्नाथपुरी का केस। अगर आपको याद होगा कि कोविड के समय एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा नहीं हो। सारा समाज इकट्ठा हो गया और कहा कि नहीं साहब, ये परंपरा नहीं टूट सकती, जो भी नॉर्म्स हैं, एसओपीज हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर रिव्यू करना पड़ा और रथ यात्रा स्टार्ट करनी पड़ी। दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है नूपुर के केस। अगर आप देखेंगे कि नूपुर जब पहले ट्रांसफर पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे तो काफी जिसे कह सकते हैं अजीब से कमेंट्स आए थे। हाँ, तो काफी अजीब से कमेंट्स आए थे और सबका मोरल डाउन हो गया था। बस पूरा समाज इकट्ठा हुआ और कहा कि ये सर आपने सही नहीं किया, और उसके बाद अपना ऑर्डर पलटा गया और सारे केस क्लब किए गए। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये बात बोलने का मकसद इसलिए है कि आज भी इस देश में जुडिशरी में जो मैं महसूस कर रहा हूं, हर एक दिन जब हम और आपसे बात कर रहे हैं, अच्छी बातें, स्ट्रॉन्ग बातें, फैक्ट्स, कंटेंट्स, रिसर्च दबा दी जाती है बिकॉज ऑफ नैरेटिव। और एक बात और कहना चाहता हूं, 2 ऐसी मैगजीन है इस समय और मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूं, बार एंड बेंच और लाइव लॉ। ये सही बातें नहीं दिखा रही है और मैं ऑल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस या जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय बहुत जरूरी है कि लीगल रिपोर्टिंग में जो राष्ट्रवादी लोग कोर्ट में बातें कह रहे हैं उसको काट दिया जाता है, और जो एक मानसिकता के लोग हैं वो लोग जो बातें बोल रहे हैं उसी को उजागर करके पूरे देश में दिखाया जाता है। अब एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में काफी वरिष्ठ एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, काफी बार आपने उनको टीवी चैनल्स पर रोते हुए भी देखा होगा। संभल के केस में भी वो रोने लग गए थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, जब ये AIMIM की पार्टी का केस चल रहा था कि ये पार्टी सही रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो उसमें इतनी भयंकर, और ये रिपोर्टेड भी, लाइव कॉमा भी रिपोर्टेड है,
इतनी भयंकर बदतमीजी कोर्ट में की गई। राम मंदिर में तो आपने देखा कि नक्शे भी फाड़े गए राम मंदिर के, और पूरे ओपन कोर्ट में राम मंदिर में नक्शा फाड़ कर फेंक दिया गया। तो ये सारी चीजें हमने देखी, पर उसके लिए हम लोग कभी उसको उतना उजागर नहीं कर पाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो अभी तक अचीव किया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। बहुत सारी चीजें अचीव करनी बाकी है सनातन समाज को, और वो जुडिशरी के माध्यम से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी बात को विराम दूंगा, 1976 में हर आदमी चाहता है कोई 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज किया तो वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस ने कमेंट किया कि दिस प्रीएम्बल कम्स विद अ कट ऑफ डेट, क्योंकि प्रीएम्बल के एंड में लिखा है वी ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब ये एक शपथ थी जो 26 नवंबर 1949 को खाई गई थी, इसलिए इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बदल सकते। और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड की बिना व्याख्या हुए, बिना कोई डिस्कशन हुए उसको गलत ढंग से ऐड कर दिया गया। पर अचानक से बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के ये पिटीशन खारिज कर दी गई। नैरेटिव का इंपैक्ट किस तरह से इस तरह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अगर चैलेंज करना हो तो 100 से ऊपर याचिकाएं आती है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करती कि 100 याचिकाएं क्यों आ गई। पर अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हुए याचिकाएं आने लग जाती है तो कोर्ट को ऑर्डर हो जाता है कि अब इतनी याचिकाएं आ गई, बस है, अब जिसको फाइल करना इंटरवेंशन फाइल है। तो ये जो चीजें और ऐसे बहुत सारी चीजें जो मतलब जैसे गौ रक्षा का मामला हो गया, जहां पे लव जिहाद का मामला हो रहा है, बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पटल पे उठाई जाती है, पर कभी सुनी जाती, कभी नहीं सुनी जाती है। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि लाइव लॉ बार एंड बेंच जैसा एक ऐसा हमारा अपना, जैसा आपने प्राचीन बनाया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि भले हमारी बात कोर्ट में ना सुनी जाए पर वो रिकॉर्ड रहे, दर्ज रहे कि कभी इतिहास उसको दोबारा हम लोग उसको करेक्ट कर सकें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सुझाव। और अभी हमारी और स्वामी विज्ञानानंद जी की यही बात होती थी, स्वामी जी बाहर यही बात कह रहे थे कि हम प्रतीक्षा ना करें कि कोई और करेगा कि वो करेगा। तो स्वामी जी कह रहे थे कि हम लोगों में से किसी को खड़े होकर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जैसे कोर्ट रूम के अंदर जो बातें हो रही है वो सच्चाई से जनमानस तक पहुंचे, सही उसका नैरेटिव सेट हो। जब जनमानस पे वो बातें पहुंचेंगी तभी वो जन आंदोलन का रूप ले पाएंगी। और हम जब तक जन आंदोलन का रूप नहीं, आपने जो भी मुख्य हमारे विषय हैं, जो भी हमारी लड़ाई है, उसको हम जनमानस के साथ नहीं जोड़ेंगे, जन आंदोलन के साथ नहीं जोड़ेंगे, नैरेटिव्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो हम कभी भी इसको जीत नहीं पाएंगे। उसके बहुत से रीजन है। अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं होता तो क्या ये जो जजमेंट आया है, क्या ये हमारे फेवर में आता? आप बताइए। ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी जी स्वयं वहां पे थे जब वो उसको डीकंस्ट्रक्ट किया गया, उस स्ट्रक्चर को तो तोड़ा गया है, तोड़ा गया, किया गया, विध्वंस किया गया, है ना, डिमोलिश किया गया। तो ये एक सेकेंड, सो ये बहुत आवश्यक है कि अपने जो देश के, राष्ट्र के, संस्कृति के, सभ्यता के और हिंदू धर्म के जो मुद्दे हैं उनको जन आंदोलन बनाना बहुत आवश्यक है, तभी हमें न्याय मिलेगा। यदि विष्णु इस पर आप कोई सार्थक पहल करते हैं तो धरवार फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख रुपए आपको अभिव्यक्त आज तो लॉयर है, आप लोगों को पता, मैंने तो इसको लीड करिए। 5 लाख रुपए में अभी समर्पित करता हूँ। What about lobbying? What about lobbying? That's also यस, तो वो बहुत बड़ा इशू है। नहीं lobbying जैसे parent bench में मतलब वो उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है जिस तरह से लाइव लॉ बार एंड बेंच है। मतलब हमें चाहिए कि जितना प्रोफेशनली वो लोग काम कर रहे हैं उतना ही प्रोफेशनली काम करें। और मैं ये नहीं कह रहा कोई फेवर करे, जो सच है कोर्ट में, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वही दिखा दे। जो हम लोगों ने बोला है, या हम लोगों से मतलब मेरा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें कोर्ट में करने पर नहीं दिखाई जा रही। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब सेक्युलर और सोशलिस्ट जो हमने उसको चैलेंज किया था उसकी याचिका कोर्ट में लगी थी, तो चैनल्स ने ट्वीट कर दिया, चला दिया, डिसमिस हो गई पिटीशन, जबकि एडजर्न हुई थी। तो मतलब इस तरह से नैरेटिव, अच्छा लाइव लॉ बार एंड बेंच सारे चैनल फॉलो करते हैं तो तुरंत एक रिपोर्ट भी आ जाती है कि अच्छा कोर्ट में तो आपने बोला ही नहीं, आप ये हुआ ही नहीं। तो बहुत बड़ा एक डिफिकल्टी है
जिससे ओवरकम करना। इस प्लेटफॉर्म से वाकई हम अपील करना चाहेंगे, जो लोग इस पे आगे बढ़ के कोई काम करना चाहते हैं, डॉक्टर रत्नू ने भी डिक्लेयर किया है, उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, लेकिन करना बहुत आवश्यक है। और मैं एक बात बता दूं, और उसकी सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन में हम इस बात को लेके आएंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये आवश्यक है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स को सेटअप करें। क्यों ये आवश्यक है कि अगर हम सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आश्रित रहेंगे तो कभी भी भारत के नैरेटिव को, भारत की सच्चाई को, हमारे संस्कृति को, इसको यथार्थ को विश्व पटल पर स्थापित नहीं कर सकते। और इसी चीज को देख के और इसी कष्ट से गुजर के हमें लगा कि भारत के सच्चे नैरेटिव को स्थापित करने के लिए और इन जितने लोगों के जो फर्जी नैरेटिव, जो भारत विरोधी नैरेटिव्स हैं, ये जो चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं, उसको खत्म करने के लिए हमने प्राच्यम हिंदू ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो अब हम आएंगे, आपके पास एन के मिश्रा जी हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप बहुत अनुभवी रहे हैं, आपने जो है पुलिस सर्विसेज में काम किया, इंटेलिजेंस में काम किया, आपने देखा है उस समय जन आंदोलन कब हुए, जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, तो आपने देखा है कि कुछ समय जब कोई सोशल मीडिया देखा कि पूरा देश कैसे उलट हो गया था भगवान राम के लिए। आप अपने अनुभव की कसौटी पे आप बताएं, और आप इस युग को देख रहे हैं जहाँ पे ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव है, आपके जो दृष्टिकोण से, आपके अनुभव से आप उन्हें बताएं कि क्या इसका है, कि कितनी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, गायत्री जी का खास करके मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मौका दिया गया है। काफ़ी थोड़ा दुष्कर है क्योंकि इंटेलिजेंस की बात अभी फोरम पे नहीं की जाती है, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि नैरेटिव सेट करने में इंटेलिजेंस का क्या रोल है। तो पहले मैं उस पर आऊँगा, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो मैं बगैर ज़्यादा वक्त लिए हुए तमाम तरह के नैरेटिव्स दुनिया में सेट किए गए हैं। मैं एक नैरेटिव्स की बात करूंगा जो ब्रिटिशर्स ने सेट किया था, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल किया था, ये बेसिकली सिर्फ डिवाइड एंड रूल नहीं था, ये बहुत ही सोची समझी नीति थी, एक नैरेटिव था डिवाइड एंड रूल। ये था डिवाइड एंड एनेक्स, क्योंकि कम संसाधन से डिवाइड करो और शासन करो, आधिपत्य जमाओ। डिवाइड एंड रूल एंड इवन डिवाइड टू एग्जिट स्मूथली। शासन करने के बाद, पूरा शोषण करने के बाद जब एग्जिट करना हो तो कैसे स्मूथली एग्जिट किया जाएगा, ये इस नैरेटिव का एक हिस्सा था। और उसमें इंटेलिजेंस का क्या रोल था मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना। अच्छा, एक चीज और, उस नैरेटिव का एक हिस्सा था देवमत मूवमेंट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये 1866 में ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, इसी नैरेटिव का एक हिस्सा, इसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा मानते थे। और इंटेलिजेंस का रोल इसमें क्या होगा, क्या था, ये मैं एक सिर्फ उस समय के जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, तुरंत जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके पहले, उन्होंने अपने रिपोर्ट के लिखा था गेम्स वेल प्लेड, राइट? हाँ, गेम वेल प्लेड, द इंडियन प्रॉब्लम्स हैव बीन कम्युनलाइज्ड and it has given us an opportunity for a smooth exit। ये डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टेटमेंट है। तो इंटेलिजेंस का रोल तो बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात हुई इसमें नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव। मैं बोलता हूं नैरेटिव भी छोड़िए, काउंटर नैरेटिव भी छोड़िए, अल्टरनेटिव नैरेटिव भी छोड़िए, आप नैरेटिव सेट करें, क्योंकि आप यदि पहले अपनी बात नहीं कहेंगे तो दूसरा आपकी बात को कहेगा और वो बड़ा ही डिस्टॉर्टेड होगा। यदि आप अपनी बात को नहीं कहेंगे, इसलिए सेट द नैरेटिव फर्स्ट, टेल द नैरेटिव फर्स्ट, टेल इट रिपीटेडली, टेल इट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, बट कीप ऑन टेलिंग। और ये स्टेट क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, स्टेट क्राफ्ट में कई बार नैरेटिव सेट करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। जैसे रिकू जी ने कहा था कि सद्दाम हुसैन जो परसिक्यूशन किया था, बोला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये लाई था, इट वाज झूठ। मैं ये कहता हूं कि नैरेटिव सेट करने में झूठ भी बोलना पड़े तो ये झूठ पहले आप बोलिए। यदि आप नहीं बोलिएगा, दूसरा बोलेगा, वो रिएक्शन। आपने कभी फिल्म लिखा है, आपने लिखा उसमें व्हाट वी बिकेम, समथिंग लाइक दैट।
how we became, why we became so. We became so because we didn't set the narrative. So we have to set the narrative. So इस बात को मैं यहीं खत्म करूंगा, इंटेलिजेंस को, रोल को। इसीलिए एक बात मैं बस ऐड करना चाहूंगा कि इस विश्व में जो सबसे फेक नैरेटिव जो है एस्टेब्लिश करने वाला है, जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो CIA है। उसने पूरी दुनिया में इतने फेक नैरेटिव्स गढ़े कि ये जो अभी बात हो रही थी सद्दाम हुसैन की या गद्दाफी की, या आप किसी भी कंट्री में देखिए, अगर उनको डिस्टर्ब करना है, उसको टॉपल करना है गवर्नमेंट को, तो आप सही कह रहे हैं कि वो अपने झूठ को पहले एज ए नैरेटिव, पहले झूठ हम बोले, दूसरा हमारे झूठ को क्यों बोलेगा? दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी। तो यदि CIA करता है, हम क्यों नहीं करते? वी मस्ट डू इट। सो दिस इज रोल ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन, इंसिडेंटली इसमें इत्तेफाक था कि जब 92 में ये वॉर था, खाचा को ढाया गया था, उस समय मैं यंग SP था, और लोगों में जो जुनून था और जो जोश था, मैं मेनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें सिक्किम के सुदूर जिले में था, फारदेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, वहां भी लोगों में जुनून था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, राइट। और जब 2019 में आया जजमेंट, और जब इसकी प्रक्रिया हुई, इत्तिफाकन मैं उस समय लखनऊ में पहुंचा, तो जो शिलान्यास किया गया उसमें मैं शामिल था, राम मंदिर के शिलान्यास में, और उद्घाटन में भी मैं था। तो उस समय जो थी एक धारणा थी, मैं दोनों का फर्क बताऊं, 92 में क्या फीलिंग थी लोगों में, एक बहुत बड़ा कोई काम हुआ है, लोगों को अंदाजा नहीं था कितना बड़ा काम हुआ है। और जब 19 में जजमेंट आया और राम मंदिर बनने की प्रक्रिया की तरफ बात आई, तो लोगों के मन में उस समय अजीब सी कसक थी 19 के पहले, इस मसले का हल हो राम मंदिर पर। तो कोई यज्ञ का एक समापन था, जैसे कोई यज्ञ होता है तो एक समा बनता है, तो 19 में आदेश के पहले एक समा था। और मैं इस मंच से शेयर करना चाहूंगा, एक बहुत बड़े मतलब तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने सन 2019 के जून में लखनऊ में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, 4 घंटे की बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मिश्रा जी, नवंबर में जजमेंट आ रहा है और हमारे पक्ष में आ रहा है। तो ये आलम था इसमें। तो मैं अपनी बात में ही विराम देता हूँ। पुनः धन्यवाद। थैंक यू मित्रा जी। मैं वापस आना चाहूंगा नायक जी के पास। नायक जी, 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि इस तरीके का जो नैरेटिव टू वॉर को जो योद्धा, जो आप सभी योद्धा हैं, यहाँ बैठे लड़ रहे हैं, उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली चीज ये है, क्योंकि आप भी उस परेशानी से गुजरे हैं, हम सब लोग गुजरे हैं, हम भी गुजरते हैं, अपनी लड़कियां आती हैं, सब हैं, वो तो हम लोग और बात करेंगे। लेकिन पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द टेक अवे। क्या आपको अपेक्षा है कि इस तरीके से जो सिविल सोसाइटी है वो किस तरीके से साथ में आए, वो आप हम लोग की कैसे मदद कर सकती है, और क्या टेक अवे है, क्या सॉल्यूशन है, हम आप यहाँ से क्या ले जाएंगे इन दोनों चीज में। सबसे पहली चीज, अगर आपको सोशल मीडिया पे योद्धा बनना है, अगर आपको इस नैरेटिव वॉर में जीतना है, तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी रेडी टू गो थ्रू इन एवरी काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। मैं मेरी बात करता हूं, जब मुझे पता रहता है मैं कोई ट्वीट करने वाला हूं और इससे बहुत आग लगने वाली है, तो उसके बाद मैं 1 दिन तक उस ट्वीट के नीचे के रिप्लाईज भी नहीं पढ़ता। अगर सपोज मेरे में पड़े तो नतीजा यह होगा कि हमारे घर में कलेश हो जाएगा, क्योंकि इंसान क्या कर सकता है, गुस्सा निकालेगा, अपना मानसिक फ्रस्ट्रेशन निकालेगा तो घर वालों को ही निकालेगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ दिस दैट यू नेवर लूज योर मेंटल स्ट्रेस, योर मेंटल बैलेंस। लीगली बहुत कुछ होता है, मैं वो सब कुछ भुगत चुका हूं, और उस वक्त प्रदीप भंडारी जी से लेके हमारे बड़े बड़े नेताओं ने उसमें मुझे मदद की थी। जब इलेक्शन के टाइम एक ट्वीट के ऊपर मेरे ऊपर केस की गई थी, होता है, ये सब कुछ होता है, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट आल्सो। वो तो नसीब अच्छा था कि हरियाणा जीत गए, वरना और एक जगह पे मेरा टूर कराने का कांग्रेस वालों का काम ऑलरेडी रेडी था। तो वो सब कुछ चलते रहता है, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो कम से कम अपना ट्वीट जो है या अपना सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट होती हो, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, वो संतुलित रखिए।
सो दैट लीगली आप किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम में न फंसे। अगर आपको कोई बात लगती है कि कोई परेशानी हो सकती है उस पर्टिकुलर बात कहने से, क्वेश्चन मत करके छोड़ दीजिए। तो सो दैट इट बिकम्स योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड एटलीस्ट यू डोंट फॉल इन द लीगल मैटर। ये कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं कि जिसकी वजह से हम कोई लड़ाई भी लड़ सकते हैं, और लड़नी तो पड़ेगी, बिकॉज किसी भी चीज से डर के अगर हम पीछे हटेंगे, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। और दूसरी एक चीज मैं इस माध्यम से, इस मंच से आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बात याद रखें, सोशल मीडिया ये एक नैरेटिव सेटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन उसे ग्राउंड पे लेके जाना पड़ता है, वो हमारे खुद की मेहनत से लेके जाना पड़ता है। जो कुछ भी आप वहां पे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे आप जिन जिन को आप जानते हैं उन तक पहुंचाइए। बिकॉज 140 करोड़ भारतीयों में से सब लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, और अगर उनमें से जो है वो कितने सही लोगों को फॉलो कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। जहां जहां हो सके आपने जो पढ़ा है, जो जाना है, वो लोगों से डिस्कस कीजिए, लोगों तक लेके जाइए, फिर वो भले व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो या किसी भी माध्यम से हो, बोलना शुरू कीजिए ताकि हमारी बातें हमारे लोगों तक पहुंचे। नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, एंड नॉट एवरीवन हैज गॉट दैट मच टाइम आल्सो इन द वर्ल्ड। तो जब आप एक नॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसका भी काफी असर पड़ता है, लेकिन वो शुरू कीजिए। दैट इज वन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो मैं इस मन से करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रदीप जी, मैं अब आपके पास आऊंगा वापस है। इतने पुराने आप तो योद्धा हैं इस नैरेटिव के, मीडिया वॉर के, नैरेटिव वॉर के। पहला प्रश्न है जो जिसपे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें वो ये है कि ओवर ईयर्स और इतने सालों के अनुभव में, इतने सालों में, इतने दशकों में इस नैरेटिव को आपने कैसे चेंज होते दिया है? थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मेरी जितनी समझ मीडिया की है, मीडिया उगते सूरज को सलाम करता है, बस एक लाइन में यही चीज है। नहीं, लेकिन आपने तो वो बता मतलब उगते सूरज के साथ साथ आपने हमेशा आप यू स्टैंड। I have always stood for it. There are very few people who stand for their national interest. बट जब हम लोग, कई बार मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ कि भाई किसी ने ओपिनियन कल तक जो हमारे खिलाफ देख रहा था, हमारे पक्ष में लिख रहा है, फिर खिलाफ लिख रहा है। दो ही रूल होते हैं जो मैं समझा हूँ। देखिए, या तो उसके संस्थान की एडिटोरियल ओपिनियन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और उस हिसाब से पत्रकार जो है वो डाल चुका है, या उसका निजी हित जो है कहीं और आ चुका है, इसके डाल चुका है, या उसको लग रहा है कि कोई दूसरा जो है वो जो अब उगता सूरज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में आई एम प्रिवी टू सो मेनी फैक्ट्स कि कई ऐसे लोग थे जो कल तक राष्ट्रवादी बातें कर रहे थे, उनको ऐसा लगा था कि भाई कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो गया है, तो लोग ने राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी मीडिया टीम के साथ अपनी कम्युनिकेशन चालू कर दी थी, और इस हद तक कम्युनिकेशन चालू कर दी थी कि वो हर चीज उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार थे। तो वो ऐसे नाला नाइट में जी रहे थे। फिर हरियाणा हुआ तो उन सबको पता चला कि भाई ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जो रियल पेट्रियट्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप किसी और को अपनी लड़ाई आउटसोर्स मत करिए, आपको आत्मनिर्भर इस पूरी की पूरी चीज में बनना पड़ेगा। और आप ये नहीं सोच सकते कि अरे ये जो आज हमारे पक्ष में बात कर रहा है कल वो हमारे विरुद्ध बात कर रहा है। द रूल ऑफ मीडिया इज दैट इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। Big mainstream media are conglomerates which are run as businesses, which means that more viewership, more ratings, more advertising, और कुछ नहीं है। अगर आप इमोशनली अटैच होना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल आपको रियलिटी पकड़ चलेगी। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट दैट्स द ट्रूथ ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। तो पहली चीज, एक सेकंड बस, ये 10 सेकंड, जो सोशल मीडिया है वहां पे आपको ट्रू पेट्रियट्स देखते हैं। फॉर इंस्टेंस शेफाली जी हम सबको इंस्पायर करती हैं क्योंकि इनका स्टैंड कभी भी पिछले 10 साल में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इनका कोई निजी हित नहीं है, राष्ट्र के हित के साथ जुड़ी हुई है। पर कितने मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रवीण जी, आपने तो उनके ऊपर एक थीसिस और डीएनए का कोई पर्ची रेडी रख ली होगी, जो पहले क्या बोलते थे और आज क्या बोलते हैं, और क्या भरोसा कल क्या बोलेंगे। तो जो हम पेट्रियट्स और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादियों की जो स्ट्रेंथ है वो ये सभागार है, जो फोर्स करता है मेन स्ट्रीम मीडिया को कि वो हमारी बात सुने और नैरेटिव चले। आज मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, nobody in mainstream media or any media, whether it is social, has control on narrative.
आज हम सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, ट्रूली डेमोक्रेटिक इंफॉर्मेशन स्पेस में रह रहे हैं, जहां एक भीखू मातुदे का हैंडल अगर एक ट्वीट करे और उसको 1 मिलियन आईबॉल्स आ जाए, आप देखेंगे कि कई चैनल्स की डिबेट उस एंगल के हिसाब से भी होना शुरू हो जाए, विच इज अ हार्ड फैक्ट। आप ये देखेंगे कि अगर सोशल मीडिया और ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड हो रही है या कुछ बड़ी न्यूज हो रही है, फॉर इंस्टेंस कल ही आपने देखा होगा हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन लिखा था कि भाई मंदिर जो है जहां पे भक्त अपने भक्तजन अपने भगवान के लिए दान करते हैं, अब वो कांग्रेस की सरकार की स्कीम के लिए अपना पैसा दे। इट वाज अ मॉडर्न औरंगजेबी सोच विच दे ट्राई टू इंप्लीमेंट। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कल उसको अपना एक मेन प्रोमिनेंट स्टोरी बनाया। सो नाउ पहले क्या होता था, इट वाज टॉप डाउन, ये मैं आपको कह सकता हूं। द गुड पार्ट नाउ इज दैट इट इज बॉटम अप नाउ, इट इज अ मेश व्हिच मींस यू कैन आल्सो इन्फ्लुएंस, मेनी पीपल कैन इन्फ्लुएंस इट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि हर बूथ तक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, या हर विधानसभा तक हमारे लोग होने चाहिए, और हर विधानसभा के हर विलेज तक हमारा व्यक्ति होना चाहिए, और वो हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जो ये ग्राउंड पे ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर वो कनेक्टेड होगा तो आप कोई भी नैरेटिव को डिफीट कर सकते हैं, कोई भी फेक न्यूज को आप काउंटर कर सकते हैं, और कोई भी नए नैरेटिव को आप आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप फिर एक हैंडफुल फ्यू में नहीं बटेंगे। ये एक लार्जर रियलिटी है। आइडियोलॉजिकली मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे मैंने लोगों को सच्चे अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहते हुए देखा है। अदरवाइज ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया पार्ट आई डोंट ब्लेम पीपल, बट देयर आल्सो आई विल टेल यू देयर इज अ गुड चेंज। जो 2014 के पहले तक जिनको लगता था कि भाई ये देश का नैरेटिव वो डिसाइड कर रहे हैं, आज उनको भी चैलेंज मिला है नए जर्नलिस्ट के साथ में, जिनके शोज को ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है, इक्विवेलेंट व्यूअरशिप मिलती है, उन लोगों से सवाल पूछे जाते हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द एंटायर सिस्टम हाउ आई सी इट। सो फॉर मी आई बिलीव एज अ पेट्रियट, एज अ नेशनलिस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप वर्ल्ड व्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और आज भारत अपने वर्ल्ड व्यू को भारत के लेंस के हिसाब से दुनिया को दिखा रहा है, ना कि जैसे नेहरू जी के समय में वेस्टर्न लेंस के हिसाब से हम जो है पूरे के पूरे भारत को देखते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री भगवा पहनकर पूजा भी करते हैं, और वही प्रधानमंत्री जाके इंडो यू ट्रेड टॉक भी करते हैं, हमारे टर्म्स पे करते हैं। आज आपका जो ओटीटी है उसको भी व्यूअरशिप मिलती है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है, आज भीखू मातरे को भी करती, सबको करती है। तो आज अगर हम लोग पीछे होंगे किसी भी चीज में, वो हमारी इनकेपेबिलिटी की वजह से होंगे, किसी और के ऊपर हमें ना हमारी हार का ठीकरा फोड़ना चाहिए। अगर जीत होती है तो कलेक्टिव होती है। तो आज अगर मैं वापस से बस दोहराऊंगा, एक चीज की जो हमेशा मैं कमी देखता हूं, खुद मैं कह रहा हूं, जिसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या हम एक लार्जर रिसर्च रिपोजिटरी ऐसी तैयार अलग अलग फील्ड्स और उसमें कर सकते हैं, जिससे हम नैरेटिव्स लीड करें। हर नैरेटिव, जैसे उन्होंने बोला, जरूरी नहीं कि 100% ट्रूथ हो, बट परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। परसेप्शन क्या जाता है वो मैटर करता है। और सर मैं आप सबसे एक बात पे भी डिसएग्री करूंगा, जिन्होंने सर ने बोला कि भाई हम बहुत बुरी तरीके से हार गए। भाई 80 चुनाव राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, 80 ज्यादा चुनाव, तब भी वो ऐसे घूमते हैं कि नेक्स्ट चुनाव वो जीतने वाला है, जो कभी होने नहीं वाला है। तो अगर हम तीसरी बार सरकार के अंदर आए हैं, हमें पब्लिकली और मॉरली कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम हारे हैं। हम तीसरी बार, मैं वापस से कहूंगा, इट्स नॉट अ नॉर्मल फीट इन दिस कंट्री and globally to atmosphere. Even Donald Trump could not repeat 2 consecutive times. So it's a great feat. It's a victory of patriot, and Bharat today is the only shining spot जहां पे एक ग्रोथ दिख रही है। और साथ में जैसे विष्णु जी ने बात करी, बहुत काम करने की जरूरत है, सब कुछ नहीं हुआ है, पर हम कलेक्टिवली अब कर सकते हैं। विचार और विमर्श शुरू हो चुका है जो पहले नहीं था। और ये महाकुंभ में भी हमने देखा है, हर तरफ हमने देखा है कि सब कॉन्शियस सनातन रिवाइवलिज्म हो चुका है, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। एंड ऑल ऑफ अस शुड हैव इट ऑन अस टू टेक इट फॉरवर्ड नाउ। थैंक यू। और जस्ट स्टे विद मी, बिकॉज अभी एक दो प्रश्न आप ही से पूछ रहे हैं। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं प्रदीप भंडारी, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी से। नैरेटिव सिर्फ पॉलिटिक्स जीतने हारने तक या सोशल मीडिया का उद्देश्य सिर्फ वही नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा लार्जर उद्देश्य है। संस्कृति के संरक्षण में हमारे हर तरीके के मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो अविरल अक्षर धारा जो हमारी संस्कृति की, ऋषियों की परंपरा की हजारों वर्षों तक बह के हमारे तक आई है, ये बिना किसी अवरोध के ये आगे अविरल बहती रहे, इसका उत्तरदायित्व उन सभी लोगों के पास है जो लोग इस फील्ड में है, मीडिया की फील्ड में है।
मैं बस ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो भारत के नैरेटिव को, संस्कृति के नैरेटिव को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, चाहे वो कुछ फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा या अनसेंसर्ड सोशल मीडिया के द्वारा है, कि मतलब जो भी चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पोस्ट कर रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, फेसबुक पर रील्स आ रही है, इसके विषय में लेके इस पे कैसे थोड़ा अंकुश लगाया जा सकता है, इसमें क्या पॉलिसीज इन द मेकिंग है और क्या विचार है? Ji, I am of this firm opinion, and I say this with a lot of responsibility. Freedom of expression does not give you the right to spread vulgarity and obscenity. Freedom of expression does not give you the right to spread content which hurts your basic Bharatiya Sanatani values. And this is why 19B was in the Constitution of India. मैं सेंसरशिप वर्ड का प्रयोग नहीं करूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा कंटेंट जो वल्गर हो, जो ऑब्सीन हो, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के एप्स के जरिए, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके एप्स, उनके फोन पे पहुंच रहा है, हमें ये जरूर विचार करने की जरूरत है कि उसका रेगुलेशन किस तरीके से हो. बिकॉज एब्सोल्यूट फ्रीडम इज द लॉ ऑफ द जंगल, एटलीस्ट ऑन कंटेंट. सो मैं इस पे मानता हूं कि इस पे जरूर विचार हो रहा है. और जो अभी रिसेंट हमने देखा कि वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स ने जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो बातों का प्रयोग किया, जिसके खिलाफ समाज खुद खड़ा हुआ, जिसके ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक, समाज खुद खड़ा हुआ, ये दर्शाता है कि इस देश में सामाजिक जनचेतना है कि ओटीटी पे, इन पर्टिकुलर ओटीटी पे जो एप्स वल्गर ऑब्सीन कंटेंट को आगे बढ़ा रही है, जो एल्गोरिथम्स वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं उनके एल्गोरिथमिक तरीके से, विच मीन्स अगर आपका कंटेंट ज्यादा वल्गर हो तो आपको ज्यादा व्यूज आए, आपका कंटेंट ज्यादा ऑब्सीन हो तो आपको ज्यादा व्यूज आए, अगर आप गाली गलौज करो तो ज्यादा व्यूज आए. ये हमें एक सिस्टमैटिक लेवल पे इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, जिससे वो कंटेंट जो ऑब्सीन और वल्गर ना हो, जो हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर, देखिए भारत और पश्चिम देशों में फर्क है, और वो है हमारी भारतीय वैल्यूज, और उसकी जो आधारशिला है मेरे हिसाब से वो हमारी फैमिली वैल्यूज है. फैमिली स्ट्रक्चर ऑलवेज हैज बीन द इंस्ट्रूमेंटल फंडामेंटल पिलर ऑफ इट, एंड आई सी अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी थ्रू अ लॉट ऑफ लार्ज प्लेयर्स in order to question this and in order to strike at the core of this. I believe the time has come for all of us, even on the side, how do we ensure that obscene and vulgar content is regulated? It cannot just have a free pass like it used to have in the past. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस समाज की जन चेतना है. और अगर आपने देखा था इसके बाद में जो मिनिस्ट्री के लेवल पे भी डिस्कशन हो रहा है, there is a discussion that how do we regulate this content. ये कब होगा ये आपको मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा. सही है. दूसरा बस आपसे लास्ट थोड़ा सा ये, एक जो जितने लोग इस स्पेस में काम करते हैं ना, जितने मीडिया में, सोशल मीडिया में, नैरेटिव बिल्डिंग में, जो धार्मिक योद्धा जो वो कहते हैं, उनके मन में एक ये थोड़ा सा एक एप्लीकेशन रहता है. वो मालूम है क्या का? वो ये है कि हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये हमारा साथ पता नहीं देगी कि नहीं देगी. तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? इस तो मेरे हिसाब से बीकू जी ने आपको बता ही दिया कि साथ कैसे दिया जाता है. तो मैं क्या बोलूं, बीकू जी ने बता ही दिया आपको. जब वो दुविधा में पड़े थे सब इनके साथ में खड़े हुए थे. वेरी गुड. तो विष्णु जी, हम आपके पास आएंगे अब वापस. इस जो ओह अच्छा, ठीक है. तो अब समय कम है, इसलिए विष्णु जी को अभी फ्लाइट पकड़नी है. तो आई थिंक टू सम इट अप, जस्ट जो टेक अवे है, एक एक लाइन में सब लोग कुछ बता दें. टेक अवे ऑफ दिस सेशन, क्योंकि इससे मिले, बात किए, प्रॉब्लम डिस्कस करें, वही नहीं, सॉल्यूशन क्या है, टेक अवे क्या है, और सब लोग, और ये बातें जिन तक पहुंचेगी, जो लोग इसको देखेंगे उनके लिए क्या सुझाव है, क्या टेक अवे. प्रदीप जी आपसे शुरू करते हैं. जस्ट इन वन लाइन, एग्जैक्टली यू नो समथिंग. One line is that this is the best time for patriots. Let's make Viksit Bharat a reality. If you want to have a Viksit Bharat, you have to set the narrative and you have to take it first. बदली हो जाएगा.
strong legal reporting platform is required. नैरेटिव्स हम जितना भी सेट करें उन्हें लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें साथ रहना होगा और जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन हमें हर उस इंसान तक पहुंचानी होगी, फिर वो अपने घर के मेड और ड्राइवर्स हो या हमारे खुद के फैमिली के परिवार के लोग हो। बहुत बढ़िया। और अंत में इन सब लोगों की बातों को समाप्त करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये बहुत आवश्यकता है कि हम लोग सजग हो, सचेत हो, सशक्त हो और संगठित होके इस युद्ध को साथ में हम लड़ें। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जितने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी बातों को जनमानस तक पहुंचाने में आप लोग अपना संपूर्ण योगदान दें और हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो 10 लोगों को कम से कम वो इस बात को पहुंचाए कि वो लोग भी इनके नैरेटिव को, सत्य को स्थापित करें पूरे विश्व में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर करेंसी में कब आएगा? वो मैं अभी देख ना आया, पहले इसको हटाएगा तो आएगा, अगर गांधी जी हटेंगे तो आएगा। Never do biscuit day. Big beautiful. Actually, ये रखो ना after बात। अपन चिंताने वाली है। ये तो फिर